So this week's main story is the much discussed Lenskart IPO and all the valuations buzz around it. There has been a lot of discussion on the key exits, marquee investors, and the anchor book players. So after the end of this video and the valuation check, we will decide whether we want to be part of the Lenskart's growth story or not. Hi, मैं हूं Kshitij and welcome to the Indian Market Research. Show का structure is similar. We'll start with the Nifty analysis. We'll monitor the institutional flow. We'll see which sectors are outperforming Nifty, and in the end, we will see global overview क्या है market का and how's the market looking. So let's start with the Nifty. So we'll start with the Nifty's monthly chart. As you can see, Nifty is currently inside this long-term channel and it's still holding the bottom of the channel. So unless Nifty breaks this 24,300 ka support zone, which is this level, there is no chance that there is a significant bearish structure or trend reversal on the index unless this 24,300 is broken, because index is still trading above this 21 monthly moving average and we have a resistance around all-time high of 26,277. This is a bullish closing. There is small rejection here, but the closing is still bullish and we have a closing above 4 months high. So unless there is a breakdown outside this channel or a breakdown of 24,300, we should not plan or get worried about the long-term trend of the index. Now let's take a look at the weekly chart. Last week we discussed that unless index breaks this 24,300 ka support zone, the long-term structure will remain bullish. However, we saw a gravestone doji, which we highlighted that it is a sign of some weakness emerging, but will not plan bearish until index breaks 25,400 ka this supposed or breakout zone. This week, now we have a shooting star. This is again, both are the realistically like bearish reversal pattern and kind of is confirming. So in all likelihood, there is a possibility that index might retest this zone of 25,400. If in case it retests and there is a reversal signal or recovery towards the end of the week, then it will be a clear sign of a breakout retest. But if there is a breakdown of this zone and a significant down closing like a big bearish candle, then we can see that the short-term momentum of index has like turned bearish. So on the daily chart, these are the key levels which we are following. As you can see, after reclaiming its 21-day EMA on the daily chart on 6th October, index ने कम से कम 4 से 5% का sharp jump दिया है. And unless this 50% retracement of this sharp jump, which is around 25,400 का zone, जो हमने weekly chart पे भी discuss किया है, अगर जब तक इस zone का एक decisive breakdown नहीं आता, we can still assume that this is the sharp pullback or a retracement towards the breakout zone जो यहाँ से हुआ है. फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखते क्या बनता है. अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो वी विल सी इंडेक्स का ये फॉल्स ब्रेकआउट था पूरा जोन एंड देन इंडेक्स इज अगेन गोइंग डाउन. सो लेट्स मॉनिटर द प्राइस एक्शन अराउंड 25,600 से लेके 25,400 के इस जोन में. इफ देयर इज अ डिसाइसिव ब्रेकडाउन फ्रॉम दिस जोन एंड द 21 EMA, तो वी विल हैव अ क्लियर बेरिश सिग्नल. अदरवाइज वी विल आल्सो लुक फॉर अ रीटेस्ट एंड अ रीबाउंड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम हियर कि भाई अगर लॉन्गर ट्रेंड अप ट्रेंड है, मंथली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है, सो व्हाट्स द लॉन्गर ट्रेंड. ठीक है, until then 26,100 का this zone will act as a resistance and 25,400 का this zone will act as an immediate support. इन दोनों के ब्रीच होने पे ही हमें आगे के डिसाइसिवनेस कॉल लेना है बेसिकली. So let's start with the Nifty's valuation check. जो हमारे सामने चार्ट है, it's a 3-year PE chart of the Nifty. As you can see, the current reading is around 22.6, which is just above the average 3-year average of Nifty और 1 standard deviation के पास है. This means basically market थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, बट वैल्यूएशंस ओवरबॉट जोन में नहीं है, विच इज अराउंड 23.9 एंड ऑल. सो इट इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन एट हायर लेवल्स. नीदर इज इट टू एक्सपेंसिव, नीदर इट इज टू चीप, but it's still there is a room for consolidation at higher levels and it's still trading above the 3-year average. Okay, now we'll move to the breadth analysis जो हम करते हैं every week, that how many of the Nifty 50 stocks are trading above their 50-day moving average. As you can see, last week we saw the reading around 80% and all. Now we have this reading to 60%. So there is a sharp pullback in the breadth indicator, suggesting that there has been a profit booking in Nifty at higher levels. And if you monitor the data from September, so 80% की रीडिंग के ऊपर इंडेक्स नहीं जा पा रहा है. दिस मीन्स बेसिकली बॉटम 40% 50% के रेंज से बाइंग आ रहा है एंड 80% के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है. And nobody is able to push this breadth analysis, breadth of the index above 80%. हालांकि 80% के ऊपर जाने के बाद there are chances of profit booking also, but in case if the momentum has to come and sustain, it has to come above 80% for a push towards all time high. So जब तक breadth analysis से 80% के ऊपर की रीडिंग सस्टेन नहीं होगी,
there is a likelihood कि we will still hover in this range and we may see bouts of profit booking higher levels पे. Now, if we move to the options chart for the November series, we saw last week that there was a significant put open interest on the 26,000 call strike, put strike, which means that 26,000 has been a crucial support. Now, in this week, we can see there are call sellers also emerging at the 26,000 strike. So there was a healthy consolidation signal from earlier as well between 26,500 and 25,500. But as you can see, slowly and steadily, call writers are also emerging at this level. So this means basically index is still taking into account that it may consolidate between 25,500 and 26,500. So इस जोन का जो डिसाइसिव ब्रेकडाउन होगा उसी के बेसिस पे ऑप्शंस डेटा से हमें क्लू मिलेंगे कि आगे की तरफ मोमेंटम क्या हो सकता है. सो व्हाट इज द टेक अवे फॉर दिस वीक? निफ्टी ने वीकली चार्ट पे दो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बनाए बैक टू बैक एंड ग्रेवस्टोन डोजी को कंफर्म किया है विद अ शूटिंग स्टार. This is a sign of a short-term pullback in the index towards the crucial support zone of 25,400. Now, despite the multiple attempts, index ना all-time high नहीं निकाल पाया. 26,200 के लेवल से अराउंड रेजिस्टेंस मिलता रहा है. So this week we'll monitor कि अगर इंडेक्स की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग 25,400 के नीचे होती है, decisive closing, then it means that the short-term trend of the index has turned bearish and there is a possibility of further pullback. But in case there is a turnaround or a support based buying from 25,400, then it is a larger uptrend. तो उसके हिसाब से हम सेटअप प्लान करेंगे फिर. Now we'll see what are the FII's activity in the equity market. Last week we discussed कि unless and until they buy this month decisively, there is a high possibility that they will sell again at higher levels at the higher prices. So जैसा कि you can see the trend, July, August and September they have been heavy net sellers. And we have been getting a good support from the domestic equities, domestic investor, basically mutual fund houses and everything. So all the heavy lifting till now is done by the domestic investors through the SIP inflows. Now for the first time, they started October series on a very smaller note and all, and they have sold 2,300 crore in the October. So unless and until the trend from here changes, we cannot expect that the index में ना बहुत sharp momentum आएगा. Like there will be a sharp momentum, and to take out the all-time high you need that growth trigger in the equities, which will be the fast money like FII money. Domestic equities can cushion the market, like cushion the fall if the FIIs are selling, but the growth momentum, the next leg of the rally, will only come when they start buying again. As you can see, if we look at the index futures positioning, कि ये हमारा जो डेटा है ये दिखाता है कि FIIs का इंडेक्स फ्यूचर्स जो डेरिवेटिव्स है उसमें पोजीशनिंग क्या है. लास्ट वीक मुझे अच्छे से याद है हमने डिस्कस किया था कि इफ दे आर कवरिंग देयर शॉर्ट्स वी हैव टू सी कि जो नेक्स्ट सीरीज की पोजीशनिंग होती है क्या वो यहाँ से वापस नेगेटिव बनाई जाती है कि या फिर ट्रेंड चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग एक साल हो गया है. अगर आप येलो बार्स देखें जो ये नेट ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये पॉजिटिव हुआ ही नहीं एक्सेप्ट दिस ब्रीफ पीरियड. सो जब तक यहाँ से डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग में चेंज नहीं होगा, FIIs का कैश मार्केट की पोजीशनिंग में चेंज नहीं होगा, वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट सेलिंग एट हायर लेवल्स कि एक प्रॉफिट बाउट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी और मोमेंटम आने में थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द सेक्टोरल एनालिसिस की सेक्टर्स कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को. जैसा कि आप देख रहे हैं ये चार्ट को हमने अक्टूबर 1 से प्लॉट किया था कि भाई हम देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर में विच आर द सेक्टर्स विच आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी एंड वेयर यू शुड पार्क योर मनी फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इवन द शॉर्ट टर्म मनी चर्निंग इफ यू वांट टू डू फॉर योर पोर्टफोलियो. सो लास्ट वीक वी डिस्कस्ड, तो इसमें PSU बैंक स्टिल आर आउट परफॉर्मिंग. रियल स्टेट हमने हाईलाइट किया था वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है. मेटल का तो हमने चार्ट चेक भी लिया था कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, द मेटल पैक इज स्टिल सस्टेनिंग. IT में हमने ये कहा था ये सस्टेन कर रहा है बट देयर इज इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, सो देयर इज व्हाई इट इज सस्टेनिंग. बट अगेन देयर माइट बी बाउट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बट डाउनसाइड रिस्क कम है. तो गोल्ड प्ले एंड सिल्वर प्ले जो पैन आउट हो चुके हैं, अगर किसी को करना है तो दिस सेक्टर्स बिकम द कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग थीम. Oil and gas has come up this week in the last 1 week. ऑयल एंड गैस सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा है. तो अब ऐसा करते हैं, ये जो सेक्टर्स सारे आउट परफॉर्म करते हैं एक्सेप्ट IT जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट वीक किया, अगर आपको देखना है तो वीडियो देख लेना. हम बाकी सारे इंडेक्स का एक बार फिर चार्ट चेक लेते हैं कि इनका इंडेक्स लेवल पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेदर विच सेक्टर इज लुकिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो मेटल इंडेक्स से चालू करते हैं. लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट जोन के एकदम पास है, यहाँ फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है और दिस इज द ओनली इंडेक्स विच इज आउट परफॉर्म निफ्टी फॉर अ वाइल नाउ एंड ये अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है एंड इट इज अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन ऑफ लास्ट 1 ईयर.
तो यहाँ पे अभी भी पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड. सो मेटल पैक्स लुक्स गुड फॉर द शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज इन द इंडेक्स. ठीक है. पीएसयू बैंक में भी हमने यहाँ हाईलाइट किया था कि पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो, इसमें तो आपने काफी न्यूज देख लिया होगा कि कितना न्यूज आ रहा है कि कौन कौन से बैंक्स हैं. अभी गवर्नमेंट का न्यूज आया है कि एफडीआई 49% एफडीआई दे आर अलाउइंग फॉर इन द पीएसयू बैंक्स एज वेल. सो यहाँ भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है ऑफ 8000 लेवल एंड दिस फ्लैग का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था. तो यहाँ भी मोमेंटम अभी बना हुआ है. सो यू कैन वॉच आउट फॉर दिस स्पेस फॉर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स इसमें होते हैं. तो पीएसयू बैंक इंडेक्स भी अभी इंडेक्स को निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट इज द रियलिटी पैक, रियल स्टेट सेक्टर. यहाँ पे एक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक रिबाउंड हुआ था 21 वीकली मूविंग एवरेज का, बट यह स्टिल अभी भी 960 के लेवल को ना डिसाइसिवली निकाल नहीं पाया है. सो लेट्स वेट फॉर दिस टू ब्रेकआउट दिस 960. जैसे ही 960 के लेवल का ब्रेकआउट आता है देन वी कैन पॉसिबली इमेजिन, लाइक प्रोबेबिलिटी ये है कि दिस कैन रीटेस्ट दिस लेवल ऑफ 1049 एंड एवरीथिंग. तो सेक्टोरल बेसिस पे इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और इसके स्टॉक्स में भी मोमेंटम बनेगा. नाउ लेट्स लुक एट द ऑयल एंड गैस पैक. ऑयल एंड गैस पैक में भी थोड़ा मोमेंटम आया है, 4-5 वीक से कंटिन्यू पॉजिटिव जा रहा है. हो सकता है ये ब्रेकआउट देने के पहले यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है इस 12,000 के लेवल का, then we can expect further momentum to catch up. And in all probability यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो इस सेक्टर के ऑयल एंड गैस वगैरह सेक्टर की कंपनियों पर नजर रखिएगा. सो टुडे वी आर डिकोडिंग वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट अवेटेड आईपीओज, लेंसकार्ट. लेंसकार्ट इज एन आईवीआर कंपनी. It designs, manufactures and sells everything: frames, lenses, contacts, online and in stores. Lenskart basically runs over 2,800 stores globally, including over 2,100 in India and 669 overseas. That makes it India's largest organized eyewear brand, far ahead of the competition. ठीक है. IPO खुल रहा है basically 31st October को 2025 and is closing on 4th November. So this is the IPO के key details. If you can see, the fresh issue is 2150 crores and the offer for sale is around 5100 crore. अब इसमें basically at the upper band of implied valuation 69 से 70,000 करोड़ की valuation आती है, making it one of the largest consumer IPOs this year. अभी fresh issue को आप ऐसे समझिए कि imagine that company bakes new slices, एक कंपनी जो नए स्लाइस बना रही है and is selling them. The money from these new slices, जो नए स्लाइस है, which is like fresh issue, which is 2150 crores, 2100 करोड़ in Lenskart's case, goes directly to the company. मतलब it can use to open new stores, reduce debt or expand operations. Offer for sale here, existing shareholders like early investors, venture capital funds or founders, they are selling their old slices to the new buyers. तो मनी जो यहाँ से रेज होगा, दिस विल नॉट डायरेक्टली गो टू द कंपनी, बट इट गोज टू द इन्वेस्टर्स हु आर कैशिंग आउट पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स. ठीक है. सो इसको ऐसे समझना है बेसिकली कि यह पैसा किस लिए रेज किया जा रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द फाउंडर्स. फाउंडर्स का इसमें अगर हम स्टेक देखेंगे तो फाउंडर्स जो कि पीयूष बंसल एंड उनकी सिस्टर है, उनका लगभग स्टेक है यहाँ पे 20% का, और अल्फा वेव वेंचर्स 20%, सॉफ्ट बैंक 12%, Temasek and Medron are together 6%, and the rest with other global VC and PE funds. तो आफ्टर लिस्टिंग प्रमोटर का स्टेक स्लिप होगा अराउंड 17.5%. सो इंस्टीट्यूशंस अभी भी डोमिनेट करते हैं इसको, एंड इवन दो पीयूष बंसल जो है, जो मेन सीईओ है, वो ही इज स्टेइंग इन द कंट्रोल. नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स. अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के हिसाब से revenue has climbed from 3,656 crore in FY22 to over 6,000 crore in FY25. That's a 34% jump on the CAGR basis. FY25 में ही फर्स्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट, ये मतलब 2 साल के बाद ये देखिए 297 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और ये रेवेन्यू है. तो 2 साल के स्मॉल लॉसेस, 2-3 साल के स्मॉल लॉसेस के बाद नाउ सडनली दे हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल फॉर दिस ईयर. ऑन द सरफेस दैट लुक्स इंप्रेसिव कि भाई ठीक है, एकदम से प्रॉफिट आ गया है, ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया है, सो लेट्स इंप्रेसिव है. बट अगर आप नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे रिगार्डिंग दिस प्रॉफिट, तो यू कैन सी बेसिकली 167 crore of that profit has come from a basically an accounting gain from revaluing Lenskart's own days acquisition. ये वाला जो आप देख रहे हैं ना 167 करोड़, ये बेसिकली जापानीज आईवीआर ब्रांड को इन्होंने जो 2022 में 2022 में खरीदा था टू एक्सपैंड ओवरसीज, तो उससे आया है. 72 करोड़ इफ यू कैन सी इट हैज कम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड गेन्स जो उन्होंने रिडीम किए होंगे, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उससे आया है. एंड 10 करोड़ फ्रॉम द फॉरेक्स गेन. जो फॉरेक्स गेन है ये 10 मतलब फॉरेक्स गेन से 8 करोड़ आया है. हाँ, 8 करोड़ आया है.
So basically all of this put together is making a 260 crore of non-operating income. What do I mean by non-operating income? Matlab, that is not come from the core business of the company which has turned profitable. तो आईपीओ प्राइस के हिसाब से करंटली 69,000 करोड़ की वैल्यूएशन कमांड कर रही है कंपनी. नाउ इफ वी कंपेयर इट टू द क्लोजेस्ट पीयर, भाई टाइटन आई इसका क्लोजेस्ट पीयर है लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, टाइटन के ब्रांड में ही है. तो ईवी टू एबिटा एंड 234 टाइम्स इट्स अर्निंग के वैल्यूएशन पे ये लिस्ट होना चाहता है. तो सिंपल वर्ड्स में ईवी टू एबिटा टेल्स यू कि भाई हाउ मेनी इयर्स ऑफ कंपनीज करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू आर पेइंग फॉर टुडे. The higher it is, the more expensive the business looks. Think of it like this कि भाई imagine दो coffee shop है. Lenskart is like a trendy, fast growing cafe. Everyone is talking about it, expanding globally, powered by tech and style. तो investors ना 70 रुपए देने के लिए तैयार है for every 1 rupee it earns today. So that is the valuation I am talking about कि भाई आप 70 रुपए तक पैसा देने को तैयार हो 1 रुपए के प्रॉफिट पे, which they believe it will grow much faster tomorrow. Titan Eye on the other hand is like a reliable old chain, consistent quality and all these things. तो उस तरह से आप लोगों को ग्रोथ बिजनेस को देखना है. नाउ लुक एट देयर आईवेयर बिजनेस. लेंसकार्ट ने FY25 में लगभग हमने रेवेन्यू की तो बात ही कर ली है, ऑपरेटिंग इनकम 975 करोड़ का किया है यहाँ पे ये, ठीक है. सो इनका दूसरी तरफ टाइटन आई का देखिए तो 786 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, 85 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग है इनकम है, और 2100 स्टोर्स यहाँ है, 900 स्टोर्स यहाँ है. तो बेसिकली मार्जिन रफली आइडेंटिकल है, 11-12% की रेंज में दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी. इवन इफ यू वैल्यू टाइटन आई एट 70% डिस्काउंट टू लेंसकार्ट मल्टीपल, बेसिकली पेइंग फार लेस फॉर एवरी कप आईवेयर, तो इट विल स्टिल बी वर्थ नियरली 20,000 करोड़, एडिंग 6 to 8% ऑफ टाइटन्स टोटल मार्केट कैप. दैट शोज हाउ एग्रेसिवली कि लेंसकार्ट के प्राइसिंग कितनी एग्रेसिव ग्रोथ स्टोरी पे की जा रही है. वाइल टाइटन आई एक सिमिलर बिजनेस है बट क्योंकि वो टाइटन के अम्ब्रेला में तो वो अंडर वैल्यू हो जाता है. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई कितना हाई प्रीमियम पे ये इस तरह से कैलकुलेशन आ रही है इसकी. नाउ दिस इज द स्वॉट एनालिसिस विच क्या बता रहा है बेसिकली कि ठीक है ऐसा नहीं है बिजनेस बहुत ही खराब है यार, इट्स अ ग्रोथ बिजनेस कि भाई हायर पी पे है, तो कैटेगरी लीडर है विद टेक एम्बिशन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, ऑर्गेनाइज प्लेयर सबसे बड़ा लेंसकार्ट ही आज की तारीख में, इसको हम श्रग ऑफ भी नहीं कर सकते. बट दिक्कत ये है कि वैल्यूएशन आर स्टीप एंड प्रॉफिट्स आर इन्फ्लेटेड बाय नॉन कैश गेन्स, कि भाई तुमने जो गेन किया और प्रॉफिट बनाया वो एक नॉन कोर बिजनेस से नहीं आया. तो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर्स ये स्टोरी आप वॉच करते रहिए. इट्स अ ब्रांड टू वॉच, इट्स अ की ब्रांड, ऑर्गेनाइज प्लेयर है तो वो आप वॉच करते रहिए. बट फॉर वैल्यू सीकर्स, भाई जो जिनको इतना हाई प्रीमियम पे नहीं बाय हाथ ही नहीं जा रहा है वैसा वाला, तो फॉर वैल्यू सीकर्स पेशेंस माइट पे इन पोस्ट लिस्टिंग. पोस्ट लिस्टिंग के बाद आप मॉनिटर कर सकते हैं. हमने बाकी ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह को भी मॉनिटर किया है, तो उस हिसाब से अगर पेशेंस प्ले आउट होता है तो पोस्ट लिस्टिंग पे आप आराम से इसको ट्रैक कर सकते हैं. नाउ वी अप्रोच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, तो हम फटाफट चेक लेंगे चार्ट्स का, जो कि की चार्ट्स हम मॉनिटर करते हैं लाइक यूएसडी, आईएनआर, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन एंड एवरीथिंग, नैस्डैक, S&P 500 वगैरह. सो विल स्टार्ट विद द यूएसडी आईएनआर. हमें लास्ट टू लास्ट वीक जो हमने डिस्कशन किया था, हमने कहा था कि एक यहाँ पे थोड़ा रिकवर हुआ है, आईएनआर में स्ट्रेंथ आई है, बट अगर थोड़ा चार्ट को ढंग से देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट आया था 87 के ऊपर. पॉसिबली लुक्स लाइक दिस हैज ब्रेकआउट बीन टेस्टेड और यहाँ पे फ्रेश वीकनेस आईएनआर में देखने को मिली है. एनी मूवमेंट अबव 88-89 के जोन में, तो यहाँ पे फ्रेश वीकनेस हमें आईएनआर में देखने को मिलेगी अगेंस्ट द यूएसडी, और ये एक तरह से नेगेटिव ही ले इम्पैक्ट करता है हमको. तो दिस करेंसी माइट हैव सम मोर काइंड ऑफ पेन अहेड फॉर अस. तो चार्ट्स के हिसाब से तो वीकनेस अभी भी है, ये फॉलो थ्रू नहीं आया है. दिस लुक्स लाइक मोर लाइक अ रीटेस्ट. अनलेस ये 21 वीकली ईएमए के नीचे निकलता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ इमर्ज होगी. नाउ लेट्स लुक एट द गोल्ड. गोल्ड का हमने पहले भी एनालिसिस किया है, हम रेगुलर हर वीक कर रहे हैं कि ये बहुत हीटेड है. अगेन इट इज स्लोली कमिंग डाउन, वी कैन सी द रिवर्सल. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. दिस पैटर्न इज मोरलेसली जो दोनों तरफ मूवमेंट हो जाता है तो यहाँ इनडिसीजन हो जाता है. सो पीपल आर बुकिंग प्रॉफिट्स एट हायर लेवल. लेट दिस प्राइस कम टू 21 वीकली में, यहाँ पे ये आता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन में हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे प्लान करा जा सकता है, SIP मोड वगैरह ये. बट उससे पहले यहाँ पे अभी कुछ मत कीजिए, लेट इट कूल फर्दर अराउंड दिस जोन. इस मूविंग एवरेज के पास आने दीजिए विच इज 21 वीकली में. अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिख रही तो लुक फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे वीकनेस है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है. नाउ विल लुक एट द सिल्वर. सिल्वर को हम ना पहले मंथली चार्ट पे देखेंगे बिकॉज उसका ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ रहा था 49 के जोन का.
नाउ इफ वी सी मंथली चार्ट तो दिस लुक्स लाइक अ ब्रॉड कप. ओके, दिस तो आपने पढ़ देखा ही होगा कि वो काफी काम से इस कप का डिस्कशन चल रहा है. यूजुअली दिस इज अ कप एंड वी नीड अ हैंडल. दिस इज कॉल्ड अ कप एंड हैंडल पैटर्न. तो यहाँ भी अपना जो वीकली 21 EM है काफी पीछे रह गया है और बेसिकली दिस मीन्स कि बहुत शार्प प्राइस मूव कर गया है, तो उसको थोड़ा मीन रिवर्ट करना पड़ेगा. सो लेट द मूविंग एवरेज कैच अप टू दिस और लेट इट कंसोलिडेट फॉर इन दिस जोन फॉर सम टाइम. कंसोलिडेशन होता है तो उसके हिसाब से फिर फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो एक पैटर्न भी बनेगा. देन वी कैन एनालाइज कि भाई 21 वीकली EM से रिबाउंड हो रहा है तो फ्रेश अपॉर्चुनिटी वहां प्लान की जा सकती है. मूविंग ऑन टू बिटकॉइन. बिटकॉइन का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो बहुत टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वी कैन सी अ ट्रेंडिंग मूव इन बिटकॉइन. बिकॉज अगर आप लास्ट 2 वीक्स का प्राइस एक्शन देखेंगे तो काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेशन है. तो अगर किसी को यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडिंग प्लान करनी है शॉर्ट टर्म के लिए तो लुक फॉर लेवल्स लाइक 116 के ऊपर. अगर ये निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन के चार्ट पे या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप करते हैं या फिर वन डे पे 107 के नीचे क्लोजिंग आती है तो पॉसिबली एक डायरेक्शनल मूव दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए टू द टारगेट्स ऑफ लाइक 98,000 एंड अपसाइड में 123 का. तो बिटकॉइन पे भी नजर रखिए, बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्शनल मूव हियर. नाउ इफ यू लुक एट द S&P 500 चार्ट, S&P 500 पे वीकली चार्ट पे हम ये लॉन्ग टर्म चैनल मॉनिटर कर रहे हैं. ये टैरिफ न्यूज पे जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद ये स्लोली इंचिंग टुवर्ड्स अपवर्ड इन द चैनल. हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि इनसाइड बार बनाए, इसके ब्रेकआउट पे एक शार्प मोमेंटम होगा. वी कैन सी दैट देयर वाज अ शार्प मोमेंटम बट टुवर्ड द फैग एंड द फेड मीटिंग हुआ, उसमें उन्होंने दिसंबर कट पे एक स्टेटमेंट दिया फेड चेयर ने कि भाई दिसंबर कट इतनी सर्टेन नहीं है जो मार्केट प्राइसिंग करके चल रहा था ऑलरेडी, उससे थोड़ा वीकनेस आया. देन द रिजल्ट्स ऑफ मेटा के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, दे वर गुड बट द प्रॉब्लम इज दैट उनका प्रॉफिट और एआई कैपेक्स के ऊपर जो थोड़ा मार्केट को अनसर्टेनिटी दिखाई दी उसके कारण एक मेटा में काफी शार्प करेक्शन आया ऑफ 12%. ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन सी Amazon वाज वे अबव इट एस्टिमेट्स और स्ट्रीट को नंबर्स पसंद आए. क्लाउड बिजनेस बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया, प्रोजेक्शन फॉरवर्ड गाइडेंस भी बहुत अच्छा था. तो Amazon कैन बी अ ग्रोथ स्टोरी टू ट्रैक फॉरवर्ड. इट्स अ क्रूशियल इनसाइट फॉर दिस वीडियो. तो ट्रैक Amazon का चार्ट देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स लुक एट द S&P 500. ये ब्रेकआउट के बाद इनसाइड कैंडल के ये चैनल के अंदर गया बट देयर इज अ यहाँ पे थोड़ा एक रिवर्सल पैटर्न बना है विच इज अगेन अ ड्रैगन फ्लाई डोजी. तो अगर इसकी नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, इसके बिलो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग होती है, देन इट इज अगेन अ साइन ऑफ वीकनेस. बट वी माइट हैव एनवीडिया अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड, तो उसका भी ध्यान रखना है. सो इन ऑल पॉसिबिलिटी देयर इज सम रिजेक्शन फ्रॉम अराउंड 7,000 का जोन विच मे कम मे नॉट कम बट करंटली वीकनेस है बट उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. तो शॉर्ट टर्म में लेट द पुल बैक कम. अगर पुल बैक आना चाहता है तो पुल बैक पे देखते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन होता है. बट फॉर नाउ देयर इज शॉर्ट टर्म 7,000 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर देखा गया है S&P 500 में. नैस्डैक में देखिए तो नैस्डैक में भी हमारा ये चैनल चल रहा है, काफी टाइम से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे अपर एंड पे पहुंच चुका है तो यहाँ पे कोई भी अग्रेसिव पोजीशन मत प्लान करना. बट अगेन वी हैव सीन अ ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस चैनल. नाउ अगर ये इसके ऊपर, अब चैनल्स आर लाइक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ना, मतलब ऐसा है कि ये 100% इसको फॉलो नहीं करेगा बट इसके बाहर निकल गया है. नाउ इट कैन चार्ट इट्स ओन टेरिटरी, तो हम उसके बाद एनालाइज करेंगे. इस चैनल के अगर ये वीकनेस का होगा, यहाँ से पुल बैक आना होगा तो इट विल अगेन फॉल बैक इनटू दिस चैनल एंड द स्टोरी विल कंटिन्यू कि 21 वीकली EMA को सपोर्ट करते हुए ऊपर ट्रेंड सस्टेन करेगा. बट अगेन अगर इसमें फ्रेश मोमेंटम बनता है तो इट कैन अगेन कार्व आउट द न्यू जर्नी. फिर हम उस हिसाब से प्लान को, स्ट्रक्चर को मॉनिटर करेंगे. फॉर नाउ यूएस मार्केट को थोड़ा सा, यूएस मार्केट में थोड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो लमसम है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, मतलब वहां पे थोड़ा ओवर हीटेड है मार्केट. लेट द पुल बैक्स कम. पुल बैक कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एलोकेट गुड कंपनीज में. तो ये इस वीक का एक शॉर्ट समरी है फॉर द ग्लोबल मार्केट्स. सो दिस वाज द वीडियो फॉर द वीक. इफ यू लाइक द कंटेंट तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना सो दैट एवरीबॉडी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर द इन्वेस्टिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.